Hi bestie, welcome back to my channel. I'm sitting like this because this is just a really comfy position to. Person that I'm going to be talking about today is, I swear to God, he's the most disgusting, wild, cheap, pathetic, misogynistic, जो भी बुरा word होगा ना dictionary में वो उस पे apply हो सकता है. That man is that pathetic. Okay, first of all, y'all will be like, Riddhi, who is he? What happened? Did you date him? God no, मैंने आज तक ऐसे लड़की को तो कभी date नहीं किया है, ना मैं करूंगी, ठीक है? And I am making this video because someone needs to fucking humble this man down. Okay, how do I know him? I have never dated this guy. I've never even been really friends with this guy. I just sadly happen to know this guy because this guy is really close, friends, whatever kind of situation with someone I'm friends with. I don't have any problem with the person I'm friend with, but I do have a bone to pick with this boy. Okay, I met this guy in 2023. Okay, I met this guy in April. I did not remember him. He came to my gym. Okay, my old gym, not this current gym. He cannot afford it. I'm gonna shame in every way. Okay, because this man deserves it. Okay, I'm going to hell, but so is this man. Okay, I used to go to this gym called Cloud9, literally. Okay, this guy used to go to the gym. I never knew him. I never spoke to him once at the gym. Okay, I don't even look at such guys, if I'm being very honest. But I did know a friend of his. Okay, they are not friends anymore. The friend that I'm talking about. What do we call this guy? Eminem. Okay, the douchebag. We're gonna call him Mark. Mark ना नाम था उसका, ना उसकी personality Mark जैसी. So this Mark guy, okay, he had a friend who I was really close with. This elder brother figure type, he's very nice. I have posted stories with him also on my Snapchat and everything. And he was also once upon a time friends with this guy. Once upon a time, everyone leaves him because he's a douchebag, a literal asshole. I met this Mark guy. He told me that, yeah, I've seen you at the gym and all. And फिर वो बोल रहा था कि हाँ वो मेरा friend था. तो मैंने बोला कि हाँ वो तो मेरा अभी भी friend है. He's very good to me. Then he made that eye roll face. I'm like, what? He's very nice, so good looking. What are you even talking about? The guy I'm talking about, the brother guy, he is a very good looking guy. And if you look at the brother guy I'm talking about, and if you look at this Mark guy, the blind person would pick the brother guy over this guy. Then he tells me this, and I'm like, yeah, whatever. I was like, who the fuck is he? He's a friend of my friend. I don't give a fuck. And then I went home. I tell my sister. Then my sister next day went, and this brother guy who comes to the new gym of us, this brother guy and this Mark guy were tight. Okay, he used to come at his house every day for a year. He knew what this Mark guy used to do. He told my sister that, tell Riddhi to stay away from him because he records girls in private and then shows it off to all his friends. My sister told him that Riddhi ऐसे लड़के को भी देखेगी भी नहीं. तो उसने बोला उसको interest नहीं है, उसकी कोई friend है. तो so then I asked this ex-best friend of mine that, is this true? Because I was protective about my friend that he was friends with. So I asked the girl best friend, parties involved है इसमें, वो तुम्हारे friends हैं, तो ये क्या सच है? She calls me and then she's like, yeah, it's true. And I'm like, why are you letting someone hang out with a person like that? And see, again, if I were to go and confront this guy, I will confront my friend who was friends with this guy. It was like कि ओ मेरे पास क्या proof है ना? ये बात हो जाती है. मैंने बोला यार अब देखो, honestly मैं किसी को warn कर सकती हूँ, मैं किसी को एक तरह से बता सकती हूँ, in a way बता सकती हूँ, but मैं यहाँ किसी की माँ नहीं हूँ और ये दूध पीते बच्चा नहीं है. 22-23 साल की लड़कियां, उनको आना चाहिए क्या करना है लाइफ में. क्या होता है ना, अगर मैं जाके ये बोलती उस पर्सन को कि ये पर्सन ये कर रहा है, तो मेरे पे उठ जाता कि मैं ये सब कर रही हूँ, मेरा उस पर्सन के साथ रिलेशन खराब हो जाता. वो पर्सन जिसने मुझे ये बात बोली, this brother guy, he was ready. He told me, yeah, I can tell it to her face, or I can tell it to all your friends' face. This is the truth. I can tell it to his face also. Seen this thing with my ex-best friend that I used to get very involved in her personal life, trying to guide her, and it all backfired on me. So I stopped doing that. किसी का भला करने जाओ और वो आपको कोई गाली दे एंड में. But I was like, एक तरीका है बताने का. मैंने मेरी YouTube वीडियो में लिटरली मेकअप वाला वीडियो था, हाँ, ग्लो अप विथ मी फॉर ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो, लॉरियल वाला. उसमें मैं बात कर रही हूँ हाउ देयर इज दिस गाय आई नो हु रिकॉर्ड्स गर्ल्स इन प्राइवेट. Then listen. This guy texts me. This is on June 13th of 2023. Hi Vriddhi dash this side. I'm so sorry to bother you at this hour of the clock. कोई इसकी सॉरी सिंसियर नहीं है, मैं बताती हूँ आगे जो इसने और इन रियल लाइफ में जो इसने ड्रामे रचे हैं. Actually have some concerns related to your recent video. So one of my friends younger sister friend की younger sister को भी पता है मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ इस वीडियो में. पहले तो यहाँ पे फ्रेंड्स यंगर सिस्टर, तुम अल्फानेस तुम्हारी कम नहीं हो जाओगी अगर तुम बोलोगे आई सॉ योर वीडियो, बिकॉज ओ माय गॉड क्या पाप हो जाएगा. तुम्हारे जैसे लोग मेरे वीडियो देखने के लायक भी नहीं रहा. ही ओवरहर्ड डैश's नेम वाज गोइंग थ्रू योर वीडियो. ये भी नहीं बोल रहा है वाज वाचिंग योर वीडियो, गोइंग थ्रू, क्योंकि
क्योंकि स्क्रोलिंग होती है ना वीडियो में, just fucking writing sorry for the sake of writing sorry. He did not actually mean it because just listen to the tone of how he's constantly trying to put me down. So he went and took a look of the video. Okay, you talking about Dash's boyfriend, maybe, but it was portrayed. ये पहले ही आकर मेरे पे लांछन मारते रहे. एक assumption नहीं है उस comment में कि you are talking about this guy's boyfriend. But ये person ने खुद पे ले लिया कि हाँ ये मेरे बारे में बात कर रहा है. But it was portrayed as if you are talking about Dash's boyfriend, which is me. Good for you. बड़े बेकार boyfriend हो बताना चाहूंगी. So I just wanted to know if it from your end, if that's the case, then why, what and shit. पहले तो बेटा fucking अगर इतने एयर फ्लाइंग करते हो तो थोड़ी तो इंग्लिश सीख लो. Here's the clip of the part. मतलब ये इतना यूजलेस है कि ये जा रहा है मेरा मेकअप वीडियो में, खुद एडमिट भी नहीं कर रहा है कि खुद ने देखा है, जाके खुद बैठकर खुद स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है. तो 2 बजे इसने टेक्स्ट किया, मन किया एक लाफा बजाऊं इसको कि है कौन. मैंने इसको लिख दिया कि यार मैंने सोचा कि ये मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है, तो मैंने बोला चलो जाने दो, लिहाज में मैं जाने देती हूँ. फिर मैंने लिखा ना एंड में, मैंने इसको प्यार से टॉन्ट मारा है. एंड इफ यू डोंट डू समथिंग लाइक दिस, व्हाई आर यू टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ? नो, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग ऑन माई सेल्फ. इसको फकिंग पढ़ने आता है और इसको लिखने आता है. क्या लिखा है इस लड़के ने? मेरे पे पूरा पहले इल्जाम थ्रो कर रहा है, फिर मुझे बोल रहा है देन यू सेड हर बॉयफ्रेंड व्हिच इज व्हाई आई वाज सेंट यू बाय विद रिद्धि सेड अबाउट मी. सो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट द एक्चुअल ट्रुथ इज फ्रॉम योर साइड. भैंचोद ने कहा तेरे बारे में फर्क नहीं पड़े, तू जिए या मरे, ठीक है? 1 साल की जो तूने बदतमीजी की है आज मैं जाकर बता रही हूँ. First of all, I never said her boyfriend. I wasn't talking about you. I said clearly I have tea about this girl, I quote, and her boyfriend, I said. Okay, so don't take it upon you. It's not about just assuming it's about you. None of my fans even know about your existence. I've never posted about you or anything. ठीक है, your friends पता नहीं उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है मेरे वीडियोस देखने के अलावा. जानो मेरे मेकअप वीडियोस देख रहे हो, खुद के ऊपर चीजें अज्यूम कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है. ये बेशरम क्यों लिख रहा है? ओके. फिर इसने मुझे जून 22 को एक और मैसेज भेजा जो इसने अनसेंड कर दिया, व्हिच इज गुड. फिर मैं इसके साथ थोड़ा नॉर्मल भी होने का ट्राई की. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रियली पिस्ड मी अबाउट दिस गाय वाज दैट ही gaslighted my friend and my friend is calling me up and being like, oh did you really say that about her? Don't ever ask me this question regarding a man again because what? Tell this 6 feet clown to stay in his limits. And अभी तुम पता भी है फिर भी तुम नहीं सुनना चाहते तो मैं कौन होती हूँ किसी को बोलने वाली? भाई तू सुन, मेरा कंसर्न नहीं है. सो ये पूरा मैटर हुआ उससे 1 हफ्ता पहले. तो मैं स्टोरी ना घुमा के बात कर. तो उसके 1 हफ्ते पहले मेरी एक फ्रेंड और मेरी एक एक्स बेस्ट फ्रेंड और ये लड़का, हम लोग सब कार में थे, मेरी कार में. ये लड़का बेशरम कहीं का, खुद के पास तो कुछ नहीं है, खुद एक फकिंग लिटरली बाइक ओन करता है. आई एम नॉट शेमिंग एनीवन हु ओन्स अ बाइक. तो ना वो मेरी गाड़ी में बैठता है, ठीक है, एंड मैं बहुत वेलकमिंग रहती हूँ. यू नो आई हैड जस्ट गॉट द कार, आई वांटेड ऑल माय फ्रेंड्स टू एंजॉय इट. ये गाड़ी में बैठ के मुझे टॉन्ट मारता है कि इससे अच्छा तो i20 ले लेनी चाहिए थी. एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, चूतिए. मैंने उस टाइम उसको बोला भी कि तुम ले लो ना. और ये कौन होता है मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बोलने वाला? इसके पास तो लिटरली एक बाइक है. यू शुड ओनली कम एंड फ्लेक्स योर मनी व्हेन यू हैव लाइक ओ माय गॉड अ फकिंग मेबैक लाइंड अप. तो करोगे तो थोड़ा सेंस भी बनता है. स्टूपिड कांट. वो गाड़ी का कमेंट had really pissed me off because I was like, you cannot sit in my car, eat food which I am paying for, and then throw this fuck all attitude. तो ये सब बातें होती है ना, तो किसी को नीचा गिराने की ना मैं कभी नहीं भूलती. ये सब बातें मैं एक्स बॉयफ्रेंड्स की बातें जाने देती हूँ. वो लोग मुझे नीचा नहीं गिराते. जो भी झगड़े वगड़े होते हैं मेरा उनसे पर्सनल रिलेशन होता है. भाई मेरी ना तुमसे जान ना पहचान. वन डे मी एंड माई फ्रेंड वी वर इन कार. ओके, दिस गाय वाज ऑन वीडियो कॉल. फ्रेंड के साथ होता है वीडियो कॉल पे, बट मेरे पे 2 सेकंड फोन करके मुझे बोलता है, आई क्वोट, ट्रॉय की कसम, भगवान की कसम, गाड़ी की कसम, यूट्यूब की कसम, तुम लोगों की कसम, स्नैपचैट, बम्मा बाबा सबकी कसम. ये लड़का बोलता है मुझे पसंद नहीं है जब मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहने. फिर मुझे बोलता है यू कैन कॉल मी अ मिसोजिनिस्ट, अ शोविनिस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट जो बात है वो बात है. एंड आई वॉज जस्ट silent. I was like, what? Who the fuck talks like that? Then again, I was telling my friend, you know, that you should dress up, you stay good, like you feel good about yourself. I am just that person, okay? I like to keep people around me happy. I like to, you know, I like to tell people, like, you know, if they are not their most confident selves, if I tell them, oh, you know, you can be this confident by doing this, why not? Then he tells me, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती है. वीडियो कॉल पे रहता था ना चूतिया कहीं का. क्या मेरे साथ तो बैठता नहीं था रियल लाइफ में, क्योंकि मेरे को तो 1% पसंद नहीं है. इतना 6 फुट का होके अक्ल घुटनों में और इतना पथेटिक दिखता है. मतलब he looks so punchable that my ex-boyfriend who looked like Anthony from Golmaal looked better in front of him. He honestly had a better heart compared to this guy. Not even kidding. He never spoke to me this way. I would have literally
slaughtered him with my bare hands if he would have ever spoken to me. If any man speaks to me this way. I have always been a free bird, ठीक है? And that's what you should be, guys. And babies, let me tell you, if your boyfriend dares even speak this way with you, leave him. I'm not even kidding. This is not okay. I don't know what people say. Oh, वो possessive है. Possessive, protective होने के ना अलग ways होते हैं. ये protective नहीं होता है तुमको ढकने का, बोलने का. तो ना ये बोला इसने. तो फिर मैंने इसको बोला भी कि मेरे जैसी लड़की मतलब क्या होता है. तो इसलिए नहीं, सबको नहीं होना होता है रेडी. मैंने कहा वो एक लड़की है, हर लड़की को अच्छा दिखना पसंद है, हर लड़की को रेडी होना पसंद है. ये कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ. फिर चुप हो गया वहाँ पे, ठीक है. फिर ना ये मेरी YouTube रिगार्डिंग मुझे एक फालतू कॉमेंट मारता है बोलते हुए. मुझे एक दिन बोलता है कि टेलर स्विफ्ट और तुम तो सिर्फ दोनों लड़कों के बारे में बात करती हो. किया मैं पता मेरे फ्रेंड के लिहाज में 1 साल तक शांत बैठी थी. एंड आई एम लाइक टेलर स्विफ्ट और मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्प्लीमेंट है इसमें दैट ही इज कंपेयरिंग मी टू टेलर स्विफ्ट, व्हिच इज लाइक नो, नॉट पॉसिबल. शी इज मदर, ओके, एंड टेलर स्विफ्ट इज अ बिलियनर, ठीक है, एंड यू विल नेवर इवन हैव $1 million in your life. That's all I would like to say. Also, this guy had texted me once. I forgot. I'm reading my chats with this ex-best friend of mine. This guy had texted me to remove a picture of my friend from my story. What the fuck is wrong with him? ये कौन होता है? ये क्या बाप बन चुका है किसी का? मतलब ये कैसा रिश्ता है भगवान जाने, वो मेरा कंसर्न नहीं. बट ये आदमी के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ तुम लोगों को. ऐसे ना बहुत इंसिडेंट होते थे. ये मेरी फ्रेंड को बोलता था कि ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ. लिसन वेट अ मिनट. हिज स्टेटमेंट अगेन, अनदर एंड्रू टेट स्टेटमेंट ऑफ हिज. ही इज थ्रोइंग दिस कमेंट एंड आई ओवरहर्ड दिस. ही इज टेलिंग, क्या बोलता है कि इतना क्लीवेज दिखाते हुए जा रही हो, कोई भी रोड पे आएगा करेगा. एंड आई एम लाइक, एंड आई एम लिटरली, तो ये कौन है और ये तुम किसी को इतना पावर क्यों दे रहे हो अपने ऊपर जो ऐसे बात करे. ही इज लाइक अ pervert. First of all, ये लड़कियां ढकने की बात करता है. The amount of times I have met him, I have always seen him. First, he never stared at my face. He used to stare at my fucking tits. तो मुझे जब भी लोग बोलते थे या मेरे फ्रेंड्स इसके बारे में बोलते थे तो मैं बोलती थी, भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आज इससे लड़े हो, कल इससे नॉर्मल हो जाओगे. मेरा ऐसा नहीं हो. ऐसे लोगों के साथ ना फ्रेंड बन सकती हूँ ना कुछ बन सकती. तुम्हारे लाइफ में तुम रखो. जब मैं और मेरे फ्रेंड्स स्लीप ओवर करते थे या डिनर्स पे जाते थे, ये लड़का फोन करता था. ये इतना डिस्टर्बिंग है. लाइक आई यूज्ड टू लाइक फकिंग जस्ट लिसन. आई यूज्ड टू बी लाइक. पर मुझे एक और इसके बारे में ये एक फैक्ट है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी थाईलैंड में, उससे ये जूते लेता था. ये लड़कियों को बोलता है गोल्ड डिगर. मुझे बोलता है कि मेरा कंटेंट खराब है, मेरे को ये लेना चाहिए था, मुझे ये गाड़ी के बजाय ये गाड़ी लेनी चाहिए थी. अब तुम ओन अप नहीं करते हो ये बात, सो तुम डिनाई करोगे तो ऐसे ही आएंगे मेरे जैसे लोग एक ना एक दिन. इस लड़के ने इतने लोगों के ऊपर वॉक ओवर किया है. मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड को भी पता है थोड़ा पागल करने वाला ये लड़का था. ये उसमें इन्वॉल्व था. और मैं मेरी वो फर्स्ट एपिक एक्स बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ. और फिर जब भी हम डिनर्स ये सब करते थे उसमें इसका फोन आता था. अगर कोई लड़का आता था हमारे साथ, ये ऐसा नाटक करता था, तांडव करता था. तांडव तो नहीं बोला जो तो शिव जी का है. तो ये वो अभी के अभी निकलो, अभी के अभी घर जाओ. एंड ही यूज्ड टू थ्रेटन माय फ्रेंड दैट ही वुड टेल हर पेरेंट्स. आई यूज्ड टू बी लाइक, ये फ्रेंड है या दुश्मन? फिर ये एक बार क्या हुआ था ना, ये लड़का फोन पे, उसकी फैमिली अवेयर थी, हम लोग आ रहे थे डिनर से घर वापस. 11:30-12 हुआ था. ये लड़का फोन पे उसको चिल्ला रहा है बोलते हुए कि तुम रात में घूम रही हो, ये कर रही हो, ऐसे कपड़े पहनकर. लिटरली वृद्धि और वृद्धि के बेस्टीज नहीं आएंगे, वृद्धि और वृद्धि का यूट्यूब नहीं आएगा. लिटरली इसने वृद्धि और वृद्धि ये सेम सेंटेंस इसने 5 बार रिपीट किया है वो फोन कॉल पे. एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग ये कैसे सुनाई दे रहा था मुझे, बिकॉज जो हमारे डियर स्वीट आईफोन के स्पीकर्स हैं, दे आर लाइक सो फकिंग लाउड. फेयर वार्निंग टू एवरीवन हु टॉक. अगर आप उस पर्सन जो वहां पे प्रेजेंट है उसके बारे में बिच करना चाहते हो तो वॉल्यूम धीरे करके बात करिए, बिकॉज सब सुनाई देता है बाहर. और मैं सुन रही हूँ वो बार बार बोल रहा है वृद्धि वृद्धि के बेस्टीज नहीं आएंगे बचाने. मैंने कहा ये क्या चूतिया हो गया है. लिटरली ये कौन से फकिंग कुछ भी बकवास कर रहा है. ठीक है, आज तक इसने अपनी फ्रेंड के लिए बर्थडे तक पे उसको कुछ नहीं दिया. जो फकिंग इसकी जो एयरप्लेन घूमता है ना उसमें जो टॉयज मिलते हैं वो दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इतना कंजूस लड़का है ये. मेरे को तो बोले नहीं तो मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं. ठीक है, अब तक मैं बहुत चिड़ी. और मैंने जब मेरी फ्रेंड को बोला ये बात तो उसने बोला ही इज बीइंग प्रोटेक्टिव. मैंने कहा देखो प्रोटेक्टिव ऐसे कोई नहीं होता है, ये कोई प्रोटेक्टिव नहीं होता, ये तुम्हारा डिक्टेटर बन रहा है, प्रोटेक्टिव नहीं है. प्रोटेक्टिव का मुझे मत समझाओ, मेरे पास भी लोग हैं, प्रोटेक्टिव का टोन अलग होता है. मैंने उस टाइम बोला नहीं, बोलते है कि अभी बहुत लड़ जाऊंगी मैं. मेरा कैसा होता है ना, रुक रही थी बिकॉज मेरी फ्रेंड से इतना प्यार के लिए मैं रुकी हुई थी इतने टाइम से. बट भाई मतलब एक लिमिट होता है, तुम कितनी बार किसी को कोसोगे, कभी ना कभी तो बंदा फटेगा ना. दूसरी बात सेम ये डायलॉग इसने रिपीट किया, सेम ऐसा डिनर स्लीप ओवर टाइप का, और उसमें इसने ये लड़के ने सेम ये
डायलॉग रिपीट किया। मैंने वहां पे बोला भी, मैंने बोला कि ये कौन होता है ये बोलने वाला। मैं तुम्हारे लिए जिस पर्सन को ये बकवास बोल रहा है ये लड़का, उस पर्सन के लिए हमेशा स्टैंड ली हूँ। उस पर्सन के लिए मैंने मेरी फ्रेंड को मैंने सेपरेट कर दिया। मैंने उस पर्सन के लिए उसका फ्रेंड जब उसको ह्यूमिलेट कर रहा था उसके लिए स्टैंड लिया। इस पर्सन के लिए जब जब कुछ भी होता है, जहां जहां मैं स्टैंड ले सकती हूँ, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। होटल में हो जाए, कहीं भी हो जाए, कोई भी बदतमीजी करे, मैं हमेशा फियर्सली खड़ी रहती हूँ। तो मैंने जो स्टैंड ली है, मैं तो हाथ में भाई तुरंत तुरंत गिनवा सकती हूँ। तू बता दे तूने क्या लिया है? तो जो एक फकिंग चॉकलेट चाहिए वो तक तो लाई नहीं आज तक। तो बोलो ही मत ज्यादा, ठीक है? मतलब मेरा मुंह खुलवाते हैं ये लोग, खोलने का मन नहीं होता है गाइस, बट मेरा मुंह खुलवाते हैं। अब मुझे कोई इतना मल्टीपल टाइम्स बेइज्जत करेगा, मैं सुनूंगी। ये दूसरी बार इसने वृद्धि के बेस्टीज उसको बोला भी कि मेरे को क्यों इन्वॉल्व करते, तुम दोनों का आपसे झगड़ा है। खुद देखो कि वृद्धि और वृद्धि के बेस्टीज, मैंने कहा वृद्धि और वृद्धि के बेस्टीज को तो वो बोले नहीं, ठीक है? वृद्धि और वृद्धि के बेस्टीज जब आएंगे तो उसको बताएंगे वृद्धि और वृद्धि के बेस्टीज क्या करते हैं। थर्ड टाइम आल्सो ही सेड सेम थिंग। तब मैं तो यही सोचती हूँ इतना यूजलेस है कि ये फकिंग अपनी कैबिन क्रूनेस कम करता है और ये सब फालतूगिरी पे ज्यादा लगा रहता है कि ये टाइम जोन डिफरेंट होता है जब ये लोग फ्लाई करते हैं। बंदे का टाइम कैसे है इतनी फालतूगिरी पुल करने का? मतलब क्रू में देखो वो गोल्ड स्मगलर्स थे बट वो कितने अच्छे थे। मैसेज जो मैंने मेरी फ्रेंड को भेजा था इस रिगार्डिंग, ये लड़का इतना साइकोटिक है कि ये उसका इंस्टाग्राम चेक करता है। तो इस लड़की ने मुझे बोला कि अनसेंड करने, ऑन गॉड आई स्वेयर मैं, बट इट्स देयर। आई विल शो you guys that I'm not lying because on that day this man calls me at fucking 3:42 AM को 3:42 AM को इस चूती का फोन आया है। इतना रात में ये होता कौन है मुझे फोन करने वाला? मेरे को इतना हेट करता है, मेरे बेस्टीज को इतना हेट करता है। And this is where I draw the line. And I called my friend for like fucking 30 minutes. I was like, you know what? He is an asshole. I am not going to tolerate. Multiple times इस लड़के ने मेरे को नीचा गिराया है। Fucking just tone is so bad. ये दिन के बाद मैंने मेरी फ्रेंड को बोल दिया कि भाई आज के बाद मेरे को इस लड़के का नाम मत लेना। मैं और तुम है, तुम अपना देखो, इस लड़के के साथ रहना है रहो, जो वो आपका पर्सनल लाइफ है उसमें मैं नहीं बोलती। बिकॉज देखो ये सब चीजें ना इतनी ऑब्वियस है कि वो इतना इनसिक्योर है। मतलब वो पर्सन की किसी में इतना खौफ बिठाया हुआ है कि एक मैसेज जिसमें मैं बोल रही हूँ कितना बड़ा बदतमीज आदमी है, वो अगर इससे खुद ने पढ़ लिया तो इसी और पे चढ़ेगा। भाई तेरे को लड़ना है तो तू आना मेरे पे लड़ा, इतनी हिम्मत है, इतने तुम बज रहे हो, मैं तो बैठी हूँ। या दिस मैन इज जस्ट अ यूजलेस गार्बेज पर्सन। मैं एक साल से कुछ बोल नहीं रही थी, बट आई थिंक एवरीवन हैज द राइट टू नो। या एंजॉय व्हाट वृद्धि एंड हर बेस्टीज कैन डू। व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज इज दैट इफ देयर इज a male figure in your life or anyone in your life who treats you like this, anyone you know, friend का friend है, कुछ भी है, मैंने एक साल तक ये बुलशिट किया और पता है मैं इतने इंसिडेंट्स हुए कि मैं बता भी नहीं सकती खुल के पूरे, बिकॉज वो इतने डिस्गस्टिंग है। और वृद्धि बेस्टीज का तो भाई ठीक है, मेरे और मेरे बेस्टीज का तो कंसर्न मत ले, हम लोग बहुत ऊपर की चीज है। आई ऑलवेज बिलीव इन इज दैट यू नीड टू शो दीज मेन देयर प्लेसेस, नेवर लिसन टू व्हाट दे से। चाहे किसी का लिहाज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको वहां पे एक बार, दो बार, तीसरी बार डिसरिस्पेक्ट हो रही है, निकलो वहां से। तब वो मुझे कुत्ता भी नीचा समझ ले, वो बोल दे मैं लड़कों के बारे में बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ उसकी पूरी सैलरी से ज्यादा एक डील में मैं कमा लूंगी, ठीक है? वो तो मुझे बोले ही नहीं मैं क्या करती हूँ। You know, I'm making this video because I have so much regret that I let this man out of मेरे फ्रेंड के लिए लव के कारण मैंने इतना इस बंदे को इतना सर पे चढ़ने दिया है। मेरे नहीं तो मैं कभी चढ़ने ही नहीं देती। मेरा ऐसा था कि यू नो अब मैं हर टाइम थोड़ी किसी के साथ जाके यू नो फुल ऑन ऐसा, बट जब आपको ही वो रिस्पेक्ट कभी रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, आप ट्राई करो, आप कुछ भी करो, फिर भी आपके साथ बदतमीजी हो रही है, तो आपको वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। यूजिंग दिस वीडियो कैन अ लॉट ऑफ लाइक पर्सनल ट्रबल। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो नहीं दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। यू नीड टू रिमेम्बर द डिसरिस्पेक्ट, okay? You need to remember it because if you keep on forgetting that, they are going to keep on disrespecting you and they're going to keep on walking all over you and they're just going to think that you are some carpet that they can fucking roll over. I love you guys so much. I just wanted to tell you guys this, you know, this is something that was like built up in me since like a year that I wanted to say about this man. Your besties that he said, we are amazing and yeah, I love you, not we love you. I'm like you guys. I'm supposed to ghost in my room. Anyway, I love you. Bye.